میرا ہاں آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ختنے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت دھیان سے سننا. میرے خیال سے ایڈم صاحب نے آپ کو وہ بولا ہوگا کہ قرآن میں ہاں نہیں ہے سر، آپ نے بڑا ختنہ. صحیح پکڑا، یہ میں آئے میرا تھے آیا ہوں سوال، آپ کی، میں آئے تھے. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کی کریشن کو چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو بنا ختنے کے دنیا میں بھیجا ہے. آپ اگر ختنہ کرا رہے ہیں، آپ قرآن کے عین خلاف کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں حدیثوں کو قرآن سے نیچے سمجھتا ہوں، آپ نے خود کہا تھا. تو آپ ختنہ ہاں کرا کے آپ جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ میں جا رہے. دیکھیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے. بے شک یہ قرآن دیکھو، نو تو کہہ چینج شوڈ رہا ہے. دیر بی ان دی کریشن آف اللہ. جی ہاں لیکن ہاں، اس اللہ کا کہتا ہے لقد مطلب خلقنا سمجھنے کے الانسان لیے فی. ہاں ہاں 10 ہاں سال ہاں مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے اس کو، اس او قرآنی بھائی، آیت کو سمجھنے کے لیے. ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک دو دن بس یہ مدرسے میں یا کسی عالم سے سن لیا اور بس ہو گیا. مدرسے میں 10 مطلب سال یہ عام پڑھنا لوگوں پڑتا ہے اس کی کے لیے. سمجھنے کی، مطلب قرآن نہیں جو ہے وہ عام اسی عام لیے تو انسانوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. اداہرنوں چھویوں اور سندربھوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ گتیویدیوں کو بڑھانا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں سبھی ایکس مسلموں کا ماننا ہے اسلامک کلٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کلٹ کی کتابوں کو مومنوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کر دو. اسلامک کلٹ خود بخود ختم ہو جائے گا کیونکہ 98% لوگوں کو عربی آتی ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے عالموں پر نربھر رہتے ہیں اور ان کے عالم ان لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں. عربک کلٹ کی کتابیں ہی مومنوں کو شیطان بناتی ہیں، کٹر اور منافق بناتی ہیں. ان کی کتابیں باڈی آرگن ڈونیٹ کرنے کو حرام کہتی ہیں، یعنی ایک مومن اپنے شریر کا کوئی بھی انگ کسی دوسرے کو دان نہیں دے سکتا. اسی لیے یہ لوگ اپنا بلڈ اور شریر کا کوئی بھی انگ ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں. پر جب بھی ان کی جان پر بن آتی ہے تو دوسروں سے لے ضرور لیتے ہیں. اس سمے یہ بھی نہیں دیکھتے وہ خون وہ انگ کسی مسلم کا ہے یا غیر مسلم کا. ان کی منافقتا اور دماغی اپنگتا اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ بہت ساری باتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں اسے بھی نہیں مانتے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے جس چیز کو خدا نے بنایا ہے اس میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ کرنا حرام ہے. پھر بھی یہ لوگ ختنہ کر کے اپنے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ عربی غلام جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے اس سے کہیں زیادہ یہ ملا سے ڈرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جو منافق نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مومن بننے کے لیے منافق ہونا بہت ضروری ہے. ایسا ہی ایک منافق ایڈم بھائی کی لائیو اسٹریم میں آیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کتنی گند اس کے دماغ میں بھری ہے. مسٹر حسنین رائے صاحب، رضا صاحب. جی جی حسنین رضا صاحب، مسلمان ہیں آپ ابھی تک کہ اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں ہوں مسلمان ہوں. نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے تو ہیں. یا سنائیے گا. آپ کو سنانا ضروری ہے کیا؟ جی سے اسٹریم کا رول ہے، جب تک نہیں سنائیں گے ہم آگے بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں. اس میں جی کیا سنائیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تھینک یو سو ویری مچ سر. آج کا ٹاپک تھا کہ قرآن جو ہے رمضان میں ریویل ہوا اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا رمضان کے علاوہ کسی دن میں قرآن نازل نہیں ہوا؟ رمضان میں قرآن شریف مکمل نازل ہو گیا تھا. ہیں تو ہمیں تو ساری دنیا تو بتاتی ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا محمد پہ وقتاً فوقتاً ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ہاں ٹکڑے ٹکڑے تو رمضان میں مکمل ہوا. ہیں کیا آخری آیت آیت تو رمضان میں یہ آئی نہیں تھی؟ کہہ رہی ہے، آیت تو یہ نہیں کہہ رہی ہے. ایک سے پیسہ پتہ کر لیں تو آخری آیت رمضان میں نازل ہوئی تھی. ہاں جی آخری آیت. ہاں لیکن یہ اب ساحل بھائی کا کوشچن لے لو. شہر الرمضان الذی انزل فیہ انزل فیہ القرآن، القرآن ھدی پورا کا پورا للناس قرآن. وبینات من الھدی والفرقان.
और फिर ये वाली आयत जो ये लास्ट आयत होना चाहिए, अगर लास्ट आयत कुरान की नाज़िल हुई है रमजान में, तो ये वाली आयत लास्ट होना चाहिए था। आप तर्जुमा किसका पढ़ रहे हैं ये भी देखना है। किसी का भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, तो किसी का भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अरबी पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा उर्दू में कैसे कर रहे हैं? मैं कर ही नहीं रहा। शहर का मतलब होता है महीना, रमजान होता है नाम महीने का। अल्लाह जी जिसके अंदर उनजिला उतारा गया फी ही अंदर अल कुरान, कुरान जो हुदाई है, जो हिदायत है लिन्नास के ऊपर। तो भाईजान मुझे बताएं कि भाईजान अल्लाह ने तो नहीं बोला आखिरी आयत। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, मोहम्मद पे आखिरी आयत किस मरने से कितनी देर पहले नाज़िल हुई थी आखिरी आयत? वो जान के करोगे क्या? मुझे पता लगे ना, ताकि पता लगे मोहम्मद पे आखिरी आयत कब नाज़िल हुई थी उससे मरने से। कभी भी नाजिल हो, लेकिन कुरान शरीफ मुकम्मल नाजिल हो गई, न 1 इंच ज्यादा बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, बस। अरे वो बाद में इंचों को नापेंगे, पहले हम ये नाप लें कि रमजान में कुरान आया कैसे, कब आया, क्योंकि कुरान तो 23 सालों में आया भाई। हाँ, हाँ, तो आखिरी आयत कौन सी आई मोहम्मद पे? वो आपको क्यों जानना है? तो पता लगे ना कि रमजान में आई थी कि नहीं आई थी। तुम्हारी बात को वेरीफाई नहीं करना। देखो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ जो मैं ये सब तुमने बताऊं। कैसे कह दिया कि रमजान में आखिरी आयत नाज़िल हुई थी? तो आलिम से सुने हैं तब ना। तो आलिम से पूछा नहीं कि जनाब आपके पास क्या इल्म है इस बात का? नहीं, तुम लोग एथिस्ट हो ना। अरे हम लोग जो कोई भी है उससे आपको अकल यूज करना चाहिए, इसका क्या लेना देना है? आप लोग अपना अकल क्यों नहीं लगाते हो? ये आलिमों के पीछे अंधे क्यों बने बैठे हो? आलिम सच्चे हैं। अच्छा, किस बुनियाद पे आपने उनको सच्चा माना? क्यों नहीं माने? अरे किस बुनियाद पे भाई? क्यों नहीं माने, ये कैसा जवाब है? उन्हीं से तो सारा दिन सीखा है। क्या सीखा आपने? उन्हीं से जितना भी कुछ सीखा है, जो भी और अच्छा, शिया सीखने को इस्लाम सही बचा है या है। सुन्नी इस्लाम सही है? सर एक शिया। सेकंड, सर पहले टॉपिक चेंज ना करें, रुकिए जरा। इनके आलिम में नहीं, हाँ, नहीं, इसी पे हाँ पहले ये वाला आलिम से ही कर लेंगे। हाँ, ये देखिए जनाब, हाँ, आपके उलमा ने लिखा हुआ है कि जो आखिरी वर्स है, फाइनल वर्स है जो कुरान में रिवील हुई, वो 18वीं सेंचुरी 625 के अंदर इन द मंथ ऑफ ज़ुल्हिज्जा हुई थी। रमजान में तो हुई नहीं थी। जो कुरान रेवलेशन के मुताबिक है, उसके मुताबिक ये हाँ। उसके मुताबिक जो आखिरी वर्ष है वो तो दिलहिज्जा के अंदर हुई, रमजान में तो हुई नहीं। तो आपका जो आलिम है, जो साहिल ने कहा था आपके आलिम झूठ बोलते हैं, आपने कहा आप कैसे कहते झूठ बोलते हैं? भाईजान ये तो प्रूव हो गया कि जो साहिल ने कहा है कि आपके आलिम झूठ बोलते हैं, वो 100% सच्चा बोला है साहिल ने। आप कह रहे कैसे कह सकते हो? देखो, कैसे कह सकते हैं कि आपके आलिम ने झूठ बोला है? साहिल ने कन्फर्म किया झूठ बोला है, और मैंने एविडेंस दिखाया कि साहिल ने सही बोला है कि झूठ बोलते हैं। साहिल साहब आप कंटिन्यू करें। मुसलमान में 72 फिरके होंगे, 72 अच्छा, फिरके जहन्नमी होंगे, एक ही जो होगा वो जन्नती तो होगा। कौन सा आलिम 73 फिरके सच्चा होंगे, है? 73। कौन सा आलिम सच्चा है, ये कैसे? आप फिर से सवाल वही आ जाएगा जो आप बार बार उस हाँ, आलिम आलिम में जा रहे हैं। कौन सा आलिम हाँ। सच बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो हमारे नसीब की बात है। अरे हाँ, तो भाई जो बातिल फिरका के आलिम जो बोल रहे हैं और जो हाँ, अवाम मान रही है, हाँ, तो अल्लाह ने उनकी हाँ। नसीब ही खराब रखी है, तो उनकी क्या गलती है फिर? वैसा मुकद्दर तकदीर में सब लिखा जा चुका है। एग्जैक्टली, तो उनकी क्या गलती है? अगर तकदीर में हाँ। लिखा जा चुका है कि वो बातिल फिरकों के आलिम को सही मानेंगे, तो उनकी क्या गलती है फिर? हिंदुओं का भी अपना मुकद्दर है और क्रिश्चियन लोग का भी अपना मुकद्दर हिंदू है। तो जहन्नमी है ही भाई, वो छोड़ दो। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आपकी और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ये लेके आए। तो जब नसीब में अल्लाह ने लिख दिया था उनके कि बातिल फिरकों के आलिम को वो बाकी दूसरे मुसलमान दूसरे फिरके वाले मानेंगे, तो उन लोगों की क्या गलती है? अल्लाह उनको क्यों जहन्नम में डाल ढकेल रहा है, जबकि वो खुद उसने लिखा है नसीब में कि तुम बातिल फिरकों के आलिमों को मानोगे? देखो, देखो, तकदीर में दिखाओ। जो लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला ने वही लिखा है जो करने वाले थे बंदे। तो आप फिर तकदीर में क्यों बोले कि नसीब में है? नसीब की वजह से आप सही फिरके को मान रहे हैं, हाँ, ऐसा तो क्यों बोले हम आप? करने वाले हैं, तो हमारे तकदीर में लिखा है। ओके, तो तुमने किस बुनियाद हाँ। पे
ये डिसाइड किया, हाँ क्योंकि तुम करने वाले हो ना, तो तुमने किस भाई, बुनियाद एक पे हाँ डिसाइड किया? साहिल, वन मोर क्वेश्चन है, जी जी, वन मोर क्वेश्चन है कि प्लीज प्लीज तकदीर, हाँ। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मेरी तकदीर में ना लिखा हो? जो आपके तकदीर में लिखा नहीं है वो मैं वो नहीं कर आप सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर ओके, सकते। थैंक यू साहिल साहब। फ्री विल, हम्म, उसके लेफ्ट राइट अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो फ्री विल तो खत्म हो गया ना। हाँ साहिल साहब, आपका तो हाँ फेवरेट टॉपिक खत्म है, है। पकड़े ना यार इस पे। और ये सब आप ना बोल रहे हो। हाँ हम नहीं बोल तुम रहे, कोई, आपके बुखारी साहब बोल रहे हाँ हैं, हम नहीं बोले, आपके कौन बुखारी साहब आलिम बोले। साहब बोल रहे? आलिम का नाम बुखारी बताइए ना, तब साहब, हम बोलेंगे ना। अरे इमाम बुखारी, तो ऐसा नाम बोलिए ना। बोल ये दिया ना बुखारी है अभी क्या? इमाम बुखारी। उमसुस बदर लात, अबू बकर कहता है उमसुस बदर लात, लात की छू को चाटो। ये लो, अबू बकर कहता अबे है जा, कि लात लात, बुत की शर्मगाह चूस ले, ये तुम्हारे अबू बकर ने बोला, जज्बात में आके। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की कॉटेज को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीफ था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की, मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई मैंने, इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है। माजरत चाहता हूँ मुफ्ती आसिफ साहब, इन चीजों का नहीं, जवाब जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। बस खत्म हो गया। इस चीज का कोई जवाब नहीं है। वेरी वेल डन साहिल साहब, बड़ा जबरदस्त लो पकड़ा था भाई, आपने वो। लो मैं भाई, ये दो बोल रहा मुफ्ती, हूँ। दो हाँ मुफ्ती दोनों कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं है। भाई वो ये तो कोई तुम्हारा भी हो, इस्लाम है। वो कौन सा आलिम है क्या है नहीं पता, एक लेकिन मैं ये देवबंदी बोल रहा है, हूँ। एक सुन भाई, हाँ अरे हाँ थोड़ा पॉपकॉर्न की तरह इतना ब्रेव फेल मत करो। ये कह रहे हो कि कौन हाँ आलिम है, ये एक जो है जिसकी शक्ल दिख रही मोटे मोटे गाल वाला, ये मुफ्ती वजरी हाँ है जो कि देवबंदी आलिम है। और जो ऊपर जिसकी हाँ शक्ल दिख रही है वो मुफ्ती फजल हमदर्द है, जो कि पहले बरेलवी था और अब थोड़ा हाँ शिया और बरेलवी के बीच में आ गया है, वो हुसैनी बन गया है। हाँ तो ये तो दो फिरके वाले तुम्हारे आलिम जो है मेरे एक छोटे से सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास इसका भी जवाब नहीं है। ये तो तुम्हारा तो हाल है तुम्हारे अबू बकर ये और कोई बड़े मुफ्ती है जो जवाब देंगे? अरे मैं नहीं, ये तुम्हारी नजर बोल में रहा इनसे हूँ, बड़ा साहिल सुनो, साहिल साहिल साहिल, मैं ये बड़े चे अपने किस्म के हिसाब मुफ्ती है से ना। सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ। हाँ ये सुनो, बड़े चे किस्म के मौलवी है ना ये दोनों मुफ्ती। वो कैसे भी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो। मेरी बात सुन ही नहीं रहे, सर जी, हंसे जा रहे। सुनाओ 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 हाँ सुनाओ सुनाओ। कि आपने जो हवाला दिया है, हाँ हम्म, वो हाँ, सरासर झूठ है। तुम्हारे दो हाँ आलिम तो नहीं बोले कि तुमने हवाला झूठ दिया है, ये तो नहीं बोला उन्होंने कि तुम झूठा हवाला पेश कर रहे हो अबू बकर के बारे में। वो हर तो कह किसी रहे हैं को कि हर हमारे पास चीज इसका मालूम जवाब नहीं। नहीं होती। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कौन सा आलिम है जिसको मालूम है, जरा एक का नाम बताओ। एक सेकंड साहिल, एक सेकंड ज्यादा रिवाइंड अच्छा करते हैं। मैं अगर एक बताऊंगा, रजा, नाम लूंगा। रजा रजा हाँ रजा, रुक जा। हाँ हाँ ये बोलो। सही बुखारी झूठी है, सही बुखारी अब हाँ सही बुखारी है। तो सही बुखारी कुरान शरीफ के बराबर मर्तबा थोड़ी रखती है, कुरान शरीफ से नीचे है। तो हाँ क्या नीचे है, लेकिन पता है, मेरे कह रहे मतलब सही बुखारी, इसमें रद्द कुरान बदल मजीद नहीं हो में, सकता, क्या पता। कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये कुरान मजीद के बिल्कुल बराबर है। कुरान मजीद में इस चीज की गवाही दी है कि मोहम्मद और उसके स्वाबी दूसरों के बुतों को गालियां देते थे। कुरान इस चीज की गवाही देता है। फिर कुरान ने कहा कि मत दो, तो अबू बकर अगर गाली दे रहा है तो कुरान, ये हदीस कुरान के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। कुछ भी वो कुरान शरीफ के बराबर नहीं है। कुरान शरीफ नहीं है, एक के सेकंड, कुरान शरीफ नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ अरबी में कुरान के साथ शरीफ। कुरान मजीद हो हम सकता है, शरीफ लगाते, नहीं है। हमारी हमारी सबसे बड़ी किताब है, हम लगाते।
نہیں کس طرح لگاتے ہو؟ کس صحابی نے لگایا قرآن کے ساتھ شریف؟ مجید لگایا، مجید لگاؤ، شریف کیسے لگا سکتے ہو؟ قرآن مجید بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ قرآن نہیں مجید مجید لگاؤ، شریف نہیں لگا سکتے. شریف اللہ کا شرافت قرآن کے کلام. اندر نہیں ہے. بھائی سن بھائی، ہاں قرآن کے اگینسٹ نہیں جانا ہے نا تم کو. کیا؟ قرآن کے اگینسٹ نہیں جانا ہے نا تم کو. قرآن میں چینجز نہیں ہے. ہاں تو یہ جو صحیح بخاری جو تم بتا رہے ہو، کیا پتا یہی صحیح ہو. ہاں تو یہ صحیح ہے. ختنہ ہوئی ہے. صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہو بس. ہاں قرآن شریف میں صرف حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے رضا صحابی. رضا ہاں ہاں کیا ہو؟ ساحل نے ایک سوال کیا ہے. ساحل نے کہا ہے ختنہ ہوا ہے تمہارا؟ الحمدللہ کیوں نہیں ہوا ہوگا، ہم مسلمان ہیں. قرآن سے ثابت کر دو. ہر کوئی اتنا عالم اتنا بڑا. رضا اتنے بڑے کی بات نہیں ہے. یہ سوال اس لیے کیا گیا قرآن میں ختنہ نہیں لکھا، لہٰذا اگر کوئی حدیث قرآن کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس کو ماننا نہیں ہے. لہٰذا اگر ماننا نہیں ہے تو پھر پہلے یہ ثابت کرو ختنے کے لیے قرآن کی آیت کیا ہے، بتاؤ. اگر قرآن شریف سے نہیں نکال پا رہے، ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے کہ قرآن تو یہ بھی شریف میں یہ جو اگر حدیث ہے نہیں ملا تمہارے علماء تو حدیث شریف میں دیکھو. اگر ایکسٹیج کیا تمہیں، تمہاری آواز بکواس نہیں آ رہی. تو تمہارے دو علماء اکرام نے بتایا کہ حدیث صحیح ہے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ابو بکر نے گالی دی ہے. تم کون ہوتے ہو جو مجھے کہو مجھے ایک مفتی لے کے آؤ جو بتائے، تمہارا والا کوئی عالم بتائے کہ یہ حدیث غلط ہے؟ بتاؤ وہ مفتی بتاؤ جس دونوں نے اس حدیث کو غلط کہا. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کل یا پرسوں ہاں وینسڈے کو آ جانا، وینسڈے کو اپنا عالم لے کے آنا. ویڈنسڈے کو نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. سیم ٹائم پہ اپنا عالم لے کے آنا اور مجھے دکھانا کہ یہ حدیث غلط ہے. ٹھیک ہے ثابت کرنا تم نے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. کوشش نہیں تم کرو گے، تم آؤ گے نہیں انشاءاللہ. تم نے کہہ دیا انشاءاللہ تو بولا ہی تب جاتا جب جھوٹ بولنا ہو. اچھا ہاں مطلب اللہ پہ تم مطلب یہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ اللہ ہے کیا؟ اللہ تو امب ہے. ہاں اب تم لوگ نہیں مانو گے تو اب کیا ہی زیادہ بول نہیں سکتے نا. ثابت کر دو نہیں نا یار. مانو گے. میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، ہاں تم اللہ کو کہو مغرب سے نکال کے دکھائے. میں یہ بات جو ابھی بول رہا ہوں کان کھول کے سنو. ہاں کہ ابھی تک مغرب کیا سے کان بند ہے؟ سورج قیامت کے دن نکل جائے گا. وہ جب وہ جو فیوچر ہے نا، فیوچر نا مجھے بتاؤ. فیوچر کا تیرے کو بھی نہیں ہاں پتا. ابھی مجھے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. میں مشرق سے نکالتا ہوں، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. میں اللہ ہوں. وہ نکل جائے گا، بس تم دیکھتے رہنا. نکل جائے گا، میں دیکھتا رہوں گا. ٹھیک ہے جاؤ پھر عیاشی کرو. مزید سے آگے شراب ہاں سے ٹھیک ٹون ہے. ہوئے تم بہت زیادہ. وہ میدان حشر میں سب کو پتا چل جائے گا حشر کے کون صحیح میدان ہے میں کون تمہارا غلط ہے. جو اللہ ہے اور ہاں تمہارا محمد جو ہے وہ میرے پیر کی جوتی کے نیچے ہوگا. دیکھ لینا. یہ سب مت بولو. ہاں کلیم ہے بھائی، تیرے بھی اللہ کا کلیم ہے، ایک میرا کلیم ہے. تو اپنے کلیم دے رہا ہے، میں اپنا کلیم دے رہا ہوں. میں گالی ابھی تھی دی. بولا کیا جہنم میں سڑو گے؟ میں بھائی بولا کہ بھائی میدان حشر میں سب کو تیرا پتا کلیم چل ہے نا، جائے. میرا بھی کلیم ہے. ایلن صاحب کلیم میری ہی آواز رکھنے آ ہیں رہی نا. ہے؟ ہاں صحیح سب آ گئی آپ کی. ویلکم. اچھا میرے وہ سوال کا انہوں نے جواب دیا. ختنہ ہوئی ہے بھائی آپ کی؟ جی سر انہوں نے وہی جواب دیا جی ہم حدیث سے لے لیں گے. میں نے کہا پھر حدیث تو نہیں یہ نہیں آپ لے لیں. نہیں بھائی ختنہ ہوئی ہے آپ کی؟ الحمدللہ کیوں نہیں ہوئی ہوگی. اوکے. آپ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو کریشن ہے اس میں آپ نے چینج نہیں کرنا ہے. ہائے ہائے ٹھیک ہے، ہائے اللہ ہائے کی ہائے تکلیف میں ہائے آپ کو ہائے. چینج نہیں کرنا ہے. میرا سوال یہ تو پھر نہیں ہے کہ قرآن میں ہاں ختنے کا بات ختم ہونے دے بھائی. میرا ہاں آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ختنے کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بہت دھیان سے سننا. میرے خیال سے ایڈم صاحب نے آپ کو وہ بولا ہوگا کہ قرآن میں ہاں نہیں ہے سر آپ نے بڑا ختنہ. صحیح پکڑا. یہ میں آیت میرا لے آیا ہوں سوال آپ کی. میں آیت لے آیا ہوں. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کی کریشن کو چینج نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو بنا خطے کے دنیا میں بھیجا ہے. آپ اگر ختنہ کرا رہے ہیں، آپ قرآن کے عین خلاف کام کر رہے ہیں.
क्योंकि आपने कहा था कि मैं हदीसों को कुरान से नीचे समझता हूँ, आपने खुद कहा था। तो आप खतना हाँ करा के आप जो है वो कुरान के अगेंस्ट में जा रहे थे कि आपके सामने कुरान की आयत है। बेशक ये कुरान देखो, नो तो कह चेंज रहा शुड है। देयर बी इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जी हाँ, लेकिन हाँ, अल्लाह इसका कहता है लक़द मतलब खलक़नल समझने के इंसाना लिए फी हाँ हाँ 10 हाँ साल हाँ। मदरसे में पढ़ना पड़ता है इसको, इस ओ कुरानी भाई, आयत को समझने के लिए। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एक दो दिन बस ये मदरसे में या किसी आलिम से सुन लिया और बस हो गया। मदरसे में 10 मतलब ये साल आम पढ़ना पड़ता लोगों है की इसके लिए। समझने की, मतलब कुरान नहीं, जो है वो आम आम इसीलिए तो इंसानों के समझने की चीज नहीं है। इसीलिए तो इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमानों पर कि भाई इल्म ये हासिल करो। स्टेटमेंट दे दो, भाई ये स्टेटमेंट दे दो कि कुरान हाँ को समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक स्टेटमेंट नहीं, पहले दे दो आप। हाँ क्या सही नहीं, है बोलो कि ये कि आम इंसान कुरान नहीं एक समझ आम सकता। इंसान। ओके, एक बात बताओ अभी, कुरान हाँ अगर आम इंसान समझ ही नहीं सकता तो जो इंसान इस्लाम में पैदा ही नहीं हुआ, मुसलमान हाँ के घराने में पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका तो मदरसे हाँ जाने का तो कोई यही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता। तो एक आम इंसान जो कि मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुआ, उसको तो कभी कुरान समझ में नहीं आएगा, हाँ। तो वो कुरान को एक्सेप्ट क्यों करे? फिर वही मुकद्दर की बात। नहीं, मुकद्दर तो आपने कहा था, मुकद्दर इस वजह से क्योंकि आप एक्शन करते हो, इस वजह से वो मुकद्दर में लिखा हुआ है, ना कि वाइस वर्सा। अब उसको आप चेंज नहीं हाँ करेंगे, है ना? हाँ तो सही है। अब हम एक्शन एक्शन को देखेंगे ना कि मुकद्दर को। हालांकि मुकद्दर पे हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं, आप उस लेवल पे नहीं है। मुझे हाँ ये मैं सिर्फ नहीं बताइए, हाँ, तो आपकी जो अकल है उसके हिसाब से हम चलते हैं। ये बताओ कि एक इंसान जिसको कुरान समझ में आ ही नहीं सकता, बकौल आपके, आपने 2 दिन हाँ बाद ये स्टेटमेंट रिपीट किया है, तो हाँ वो कुरान को हाँ। एक्सेप्ट क्यों करेगा? इसका जवाब दो। इस इसीलिए तो हमारे बड़े बड़े आलिम दीन तबलीग कर रहे हैं। नहीं भाई, तबलीग उनके करने से क्या होगा? जब एक इंसान को, जब तक वो मदरसे में जाके 10-10 साल नहीं देगा, उसको कुरान समझ में ही नहीं आएगा, तो वो कैसे कुरान को एक्सेप्ट करेगा? आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। यार जवाब नहीं है तो ये डायलॉग मार दोगे समझाना मुश्किल है? जब आपका अल्लाह खुद नहीं समझा पा रहा है अपने खुद किताब से, तो आप किस खेत की मूली हो जो आप समझा पाओगे? आपका मैं खाली थोड़ी के समझा कायनात पाऊंगा। सो कॉल्ड, नहीं, जब आपका खुद खाली के कायनात अपनी किताब में नहीं समझा पा रहा है एक आम इंसान को, तो आपका आपका आलिम जो है वो आपके अल्लाह से बड़ा है? उस पर अस्तगफुरुल्लाह ज्यादा सलाहियत है। अस्तगफुरुल्लाह। आपके स्टेटमेंट से तो वही नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह खुद नहीं समझा सकता अपनी किताब में, आपको 10-10 साल मदरसे में देना अस्तगफुरुल्लाह, पड़ेगा। मैं ये मतलब कहाँ कह रहा आपके हूँ। मदरसा जो हाँ है वो, फिर क्या कह रहे हैं आप? फिर क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करते जा रहे हैं। तो तुम अल्लाह से तुम ये कर रहे हो, हाँ, क्या क्या कर रहे हैं हम कि लोग? अल्लाह नहीं समझा पा रहा है हम लोगों को। आपने हाँ कहा भाई कि कुरान आदमी नहीं समझ सकता जब तक 10 साल ना दे दे वो मदरसे में, आपने कहा। हाँ। तो आपकी अल्लाह बात के को हम लिए रिपीट करके उस पर सवाल कर रहे हैं। इंसानी हाँ, जिस्म में आना मुहाल है। अल्लाह हाँ। वसीला बनाता है दूसरे अपने बंदे को कि वो दूसरों को समझाए। अल्लाह ने नबी इसीलिए भेजा, वरना अल्लाह कुव्वत, सबसे बड़ा कुव्वत है अल्लाह ही के पास है। अच्छा, एक कहाँ थोड़ा है सा वो? मेरा अपनी सवाल, किताब को नहीं समझा पा रहा है। हाँ, लो एक लो लो। एक थोड़ा सा मेरा सवाल, उसके बाद आप चलिए। हाँ अल्लाह क्या हो। इंसानी जिस्म में नहीं आ सकता, इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है, कुछ काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए वो मुहाल है, हम मुहाल यानी कि बोलते नहीं आ हैं। सकता ना, ये नहीं कि मुहाल नहीं मीन्स कर सकते। लिमिटेड है, सेम चीज है। मुहाल का मतलब होता नहीं है नहीं, कि नहीं कर मुहाल का सकता, मतलब वो नहीं होता है। और क्या होता है? लिमिटेड लिमिटेड ये इंग्लिश में कहाँ से तुम उसको जोड़ रहे हो। अरे तो मुहाल मुहाल की को ट्रांसलेट करोगे तो वही लिमिटेशन ही होता ना भाई। हाँ तो तुम किस में ट्रांसलेशन कर रहे हो, मोबाइल में, गूगल में। हाँ
किस में करना है? आप बताओ किस में करना है? आप बताओ किस में से करना है? देखो, अगर आप अच्छा लोगों आप को, बताओ मुहाल का क्या मतलब है? हमने जो समझा है अपने आलिमों से, बस उसी पे अमल हाँ, कर रहे हैं। और एक यार बात और सीखी है अपने एक काम ये आलिमों कर, तो से। अंधी हाँ तकलीद हो गई ना, रजा तू अपने आलिम को ही हाँ ले वो आ, क्योंकि मुझे अंधविश्वासी है लगता भाई है कि जा। जब तू शादी करेगा हाँ ना तो तू अपनी बीवी को पहले अपने आलिम को देगा कि पहले मेरा आलिम तेरे साथ करेगा, मैं देखूंगा और फिर करूंगा। तो जितना तू आलिम हाँ आलिम तुम, बोल रहा है ना, अपने अरे आलिम को ले आ, मैं उससे बात कर लेता हूं। तेरे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हर थोड़ी देर बाद तेरा आलिम बीच में आया था तेरे सेंटेंस में। तूने शादी वाली रात भी अपने आलिम को बताया, आलिम साहब आप बैठे, मैं जरा ना खिड़की में से देखूंगा आप कैसे करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। ये तुम लोग सिर्फ यही सब बोलोगे। हाँ, टॉपिक पे अच्छा एक नहीं बात चलना बता, है ना। लास्ट ट्राई करते हैं भाई, लास्ट ट्राई करते तेरे पर। अच्छा तूने बोला कि कुरान जो है वो समझा नहीं जा सकता, आसान नहीं है, तुमने खुद ये स्टेटमेंट दिए ना। हम्म। ओके, तो अल्लाह कुरान को कुरान में समझने के कई लिए, मर्तबा, रुक जा, हाँ ऐसे तुमने वैसे अल्लाह कहा फिर भी 10 साल झूठा है। लगते हैं, मदरसे में देना पड़ता है। अच्छा तुम झूठे हो कि अल्लाह झूठा है, ये तुमने फैसला करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह बार बार, यानी मेरे ख्याल से 9 से 10 बार जो है अल्लाह ने इस स्टेटमेंट को नकल किया है। कुरान चैप्टर वलक़द नंबर 6 यस्सरनल आयत नंबर कुरआन 114, लिज़्ज़िक्रि 6 की 114, वलक़द 10 यस्सरनल इस बारह की कुरआन 111 लिज़्ज़िक्रि दो। फ़हल मिन मुद्दकिर। हम्म, नहीं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह तो ये अब कहता है कि हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया और लोगों के समझने के लिए आसान बनाया। हाँ, तो अब तुम झूठे हो या तुम्हारा अल्लाह झूठा है, दो में से एक डिसाइड कर लो। ये कौन सी जुबान में उतरी, ओके, पहले अरबी ये जबान में बताओ। उतरी। अरबी अरबी में जुबान उतरी। में। हाँ, हाँ तो अरबी, हाँ। सहाबा कराम भी अरबी के जानने वाले थे। तो सहाबा का जब तेरे को बताया कि गाली दे रहा है छू चाटो करके, तो तू सहाबा की बात क्या मान रहा है? वो जो तुमने हवाला दिया वो कैसे मैं मान लूं सही है? अच्छा कैसे आप कंफर्म करोगे कि जो हमने हवाला दिया वो सही है या गलत है? देख, मैं नहीं और बहस कर सकता। बहुत तेरे तुम आलिम को मानने लेके के लिए आएगा भाई, तैयार तेरे ही बस नहीं की हो। बात नहीं है। तुम्हारे तेरा मुकद्दर में आलिम है को ही लेके, नहीं। फिर मुकद्दर लेके आ गया बीच में। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मुकद्दर में जा भाई, तेरे से मुसलमान नहीं हो बनना पाएगा। था ही नहीं। हाँ तो फिर अल्लाह की गलती है, अल्लाह की गलती है कि वो हमको मुसलमान बनना हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा, और उसके बाद फिर हमको जहन्नम में भी और जलाएगा। मैं आई मीन जब व्हाट मैं काइंड जब ऑफ फूलिश। मैं जब आखिरत वाले दिन ये खड़ा होऊंगा तुम अल्लाह के मैदान सामने, महशर में चंडे जब चंडे मार के पकड़े चंडे जाओगे मार ना के अल्लाह तब का यही। मुंह तोड़ दूंगा कि तूने मुकद्दर में नहीं लिखा, तू कैसे जन्नत में डाल सकता है? मुकद्दर में तो हाँ तूने नहीं लिखा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होएगा, क्या नहीं देख हो लेना, सकता? देख लेना। ऐसा हो क्या ही नहीं नहीं हो सकता? सकता। एक क्या सज्जे नहीं हाथ हो की और सकता? एक खब्बे हाथ की टपाक 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 अल्लाह के मुंह पे चंडे मारूंगा मैं। मुकद्दर में लिखा क्यों हाँ था हाँ, ऐसा? वो सब मैदान महशर में दिख जाएगा। तो देख हाँ लेना उस दिन। हाँ। फिर वही अल्लाह ने अनफिट नबी बातें, किस लिए भेजा था? फिर हाँ, वही चूरन। अल्लाह ने नबी किस लिए भेजा था? सेक्स करने के अम्ब लिए, लेने के लिए भेजा, सेक्स सेक्स करने के करने लिए, के लिए। दिन रात सेक्स करने के लिए। 30 मर्दों की ताकत दी थी अल्लाह ने तेरे नबी को भाई। चला गया, भाग गया वो। मैं हर 2 मिनट मतलब बाद इसका दिमागी मुंह फेर दो। अपंगता का भी एक लेवल होता है यार एडल साहब, पूरी पूरी हदें इन लोग ने पार कर दी है। मतलब कितने दिमागी अपंग रहते हैं यार ये लोग। हाय साहिल साहब, आज के टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा यार, सब डर रहे हैं यार आज के टॉपिक पे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।